स्टार्ट करें, बताओ। Someone wants to join. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। एक बार बस मैं अपने फ़ोन से ज्वाइन कर लूँ, फिर लेट्स स्टार्ट। कौन सा ग्रुप है यार ये रहा। ओके, तो क्या करा फिर तुम लोगों ने संडे को, बताओ। कुछ बनाया है, कुछ करा? क्या हाल चाल है, बताओ यार। एंड सॉरी, मैं थोड़ा एक मीट में था, इसलिए एक घंटा डिलेड है क्लास, बट खैर ऑल गुड। एनीवन एल्स? कैसे हो भाई, ये तो बता सकते हो। मस्त, वेरी गुड। बाकी लोग आज कम हैं, बढ़िया। खैर कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। तो एक तो क्लास छोटी रखेंगे बिकॉज मतलब शेड्यूल में इतना ही है वैसे तो, बट खैर इट इज़ अबाउट लिंक शेयरिंग एंड वायरलिटी एंड डीप लिंक्स। बाकी 2-3 चीज़ें और हैं, वी विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल इक्वेशन, वैसे तो कुछ बहुत खास है नहीं, बट लेट्स डिस्कस इट वंस। k इक्वल टू आई इंटू सी। तो k is a virality factor basically, and I is the number of invites which is sent by each user. So you got the point कि each user is sending let's say 5 invites, and C is the conversion rates rate। तो मतलब अगर 5 invites गई हैं तो उसके बाद जो conversion rate है which is let's say 0.2, which is 20%. तो how many of people are downloading the application. तो if the multiplication factor I into C is greater than 1, then eventually your app can get exploded, and if it is less than 1, then the hype will eventually die down. But abhi ke liye that is not our priority, but let's see. So there are some packages to share inside your app. If you want to you have seen some buttons where there is a share button where you can share your app का link to other people or anything from your application to the other people. तो किसी ने कोई ऐसी एग्जांपल देखी हो किसी ऐप की जिसमें देयर इज़ अ शेयर बटन एंड यू माइट हैव शेयर्ड समथिंग टू समवन एल्स? आई कैन थिंक ऑफ अ वेरी ओके फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स। एनीवन एल्स? ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वाईटी या तो एक एग्जांपल तो ऐसा हो गई कि there is a share button and you click on it and it says basically कि this is I have been using this app, you can join also. फिर उसके बाद एक लिंक होगा लेट्स से फॉर youtube.com, लेट्स से youtube.com ही, ठीक है। एंड दूसरे टाइप ऑफ शेयर बटन इज आई सॉ दिस रील, यू शुड ऑल्सो। उसके बाद लिंक ऑफ द रील, तो वो होगा लेट्स से instagram.com, फिर समथिंग लाइक कि जो भी रील का लिंक होगा वट एवर, टू डायरेक्टली गो इनटू दैट रील, ठीक है। तो फ़िलहाल तो वी विल फर्स्ट ट्राई कि हम पहले सिर्फ इतना सा भेज पाएँ कि डाउनलोड माई एप्लीकेशन, और इफ़ पीपल लाइक्स योर एप्लीकेशन दे कैन शेयर इट विद अदर पीपल टू डाउनलोड इट, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ केस इज़ दिस। तो देयर इज़ दिस पैकेज नेम्ड शेयर प्लस। तो लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड यूज़ दिस पैकेज टू शेयर थिंग्स टू पीपल, ठीक है। तो आई विल ओपन माई टर्मिनल एंड फ्रॉम देयर वी विल मूव ahead. Meanwhile you can also start a new Flutter project and open emulators. क्या होगा ऐसे?
terminal. Let's add share plus, जो यहाँ पे which we saw. Let's open pub.dev also for the package share plus. So let's read थोड़ी documentation. A Flutter plugin to share content for your Flutter app via platforms share dialog. ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं क्या है, ये भी समझते हैं क्या है. So what can you share? You can share some text, some links and some files also. ठीक है. And let's see documentation. Documentation में कुछ नहीं है, बस इतना सही है कि import the package and this line of code which is share plus dot instance dot share. फिर उसके बाद parameters, तो one of the parameters share params, जिसके अंदर we added text and any text which we want to share to people. ठीक है, तो let's try to run this application and also install the package. ठीक है. Let's perform some cleanup. Let's add a stateful widget my app. Let's add scaffold, then ठीक है. Let's also wrap this with maybe a column. This might not come for you. एक second, let me fix it in a second. Android. Meanwhile, let's code the whatever the package says. So let's make a button to share. So share my someone arrived, Amrit. Let's make this open. So for Amrit, we are discussing how to share applications, share things from your application to other applications. So let's see. Where were we? कि we just made a button and एक second यार. तो वी कैन इम्पोर्ट द पैकेज जो कि है अपना शेयर प्लस, देन इंस्टांस डॉट फिर शेयर. इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं वैसे. एंड देन शेयर पैरम्स एंड द टेक्स्ट जो हमें शेयर करना है. ठीक है, दैट्स इट. एंड लेट्स वेट फॉर इट टू बिल्ड. एंड मीनवाइल यू ऑल्सो डू द सेम. ठीक है. Okay, wait a second. Material app which we forgot.
कैन सी कि यहाँ पे एक शेयर माई ऐप करके बटन है. लेट्स क्लिक ऑन दिस नाउ एंड सी कि यू कैन सी दिस modal popped up जहाँ पे now you can share this to multiple applications, right? So as we discussed in the initial so इतना तो हमने कर लिया. This is what we wanted to achieve and this is what we did, ठीक है. And now anyone can share your app to other people or any content to other people, ठीक है. तो इसमें WhatsApp है नहीं तो we can't see, but if your device has WhatsApp तो obviously. So one thing I want to tell कि as we can understand इतना हमने establish कर रखा है फर्स्ट क्लास से ही कि Flutter is just a painter over a empty canvas, ठीक है. तो it doesn't understands कि what is happening और मतलब ये how to orchestrate something like this. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ अ नेटिव UI ऑफ एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड मैनेज करता है. तो ये तो सारे एप्लीकेशंस में सेम होता है, ठीक है. हरनीत केम इनटू द क्लास. तो आई गेस एक बार मैं हल्का सा रिकैप कर देता हूँ कि क्या हमने करा अभी तक. तो वी वांट टू शेयर एप्लीकेशंस, शेयर थिंग्स फ्रॉम आवर एप्लीकेशंस विच इज़ कि मतलब जो यहाँ पे हो रहा है इवेंचुअली कि शेयर माई ऐप एंड यू कैन सी की चेक आउट माई ऐप एट example.com or whatever, and now people can share an application. To fulfill this we did a very simple thing which is to install a package called share plus. यहाँ पे this is the documentation and you just have to do very simple thing कि when an elevated when someone presses a button you have to write certain code which is share plus dot instance dot share. then उसके बाद you can share any text which you want to share, ठीक है. what we were discussing was कि as we have established already कि this is just a Flutter is just a painting engine over a canvas and it interacts with the native UIs, ठीक है. but the point एक मिनट हाँ but the point here is कि clicking this button now as you might have imagined already कि this is now directly talking to Android to do certain tasks which is to open this pop-up जो यहाँ पे आ रहा है. तो ये तो सबके फ़ोन्स में एंड्रॉयड फ़ोन्स या iOS फ़ोन्स में सेम ही होता है फॉर ऑल एप्लीकेशंस. तो दिस पॉपअप तो इवेंचुअली व्हाट हैपन्स इज कि जो योर फ्लटर ऐप सेंड्स अ मैसेज टू समथिंग लाइक द नेटिव OS which iOS on which it is running. तो let's say you want to share something, so there is, let's assume, certain codec or certain text which you need to send to the operating system, which in this case is Android, to invoke something like this. तो for this there exists a native bridge which you can write also. अब इस इंसान ने कैसे करा, जिस बंदे ने भी शेयर प्लस नाम का पैकेज बनाया होगा, ये फ्लटर का तो है नहीं, ये किसने बनाया है, लेट्स सी. ये बनाया है fluttercommunity.dev करके कोई तो वेबसाइट है. लेट्स सी इसमें क्या है. फ्लटर कॉम, एक मिनट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, रुको यार. दीज गाइज मेड इट, जिसकी भी ये कम्युनिटी है. देखो ये कुछ खाली ही है, कुछ में कुछ है नहीं वेबसाइट में. बट द पॉइंट इज़ दैट फ्लटर ऑफिशियली डिडंट मेक दिस पैकेज. तो हाउ समवन इज़ यूजिंग और orchestrating something like this कि it is directly talking to Android to do this. तो there is this thing called platform channel which is just in function only, which is a channel between the platform on which you are working on and your Dart code. So simply to put it simply कि you can directly talk to the native thread which is working. So in this case जो तुम्हारा Android का thread है या जो अंडर द हुड कोटलिन चल रही है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू दैट. सो अभी तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट डिड दिस कि यू रोट सम 2 lines ऑफ कोड एंड इवेंचुअली इट ओपनड बिकॉज किसी ने तुम्हारे लिए काम कर रखा है. बट मे बी इन फ्यूचर यू माइट रिक्वायर सर्टेन टास्क्स विच यू कांट परफॉर्म विदाउट दिस, मतलब विदाउट राइटिंग दिस यूर सेल्फ. तो हम वो डिस्कस तो नहीं करेंगे पूरा प्रॉपर कि हाउ टू डू दैट, बट आई विल शो यू certain hints कि how the code works थोड़ा थोड़ा. I hope there is some repo on which I worked on previously. Server node app maybe. Yeah, this is the repo. तो first let me tell you कि करती क्या है. तो जैसे अगर तुम्हें कोई ऐप का आइडिया आता है तो how to execute this you can also understand थोड़ा सा यहाँ से. तो what this did was कि
लेट्स से मेरे पास एक रैंडम लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, ओके, एंड मेरे पास फ़ोन पड़ा है, मेरा फ़ोन तो है ही। अब व्हाट आई डू ऑन माई फ़ोन कि लेट्स से अभी मैं ट्रिप पे गया, लेट्स अज्यूम, एंड वहाँ से अब वापस आया हूँ, एंड नाउ आई हैव टू अपलोड द इमेजेस ऑन माई जी ड्राइव, ठीक है। तो अब इससे पहले अभी तो मतलब सबको 2 TB फ्री मिल गई है गूगल से, बट इससे पहले मेरे पास थी 15 GB ऑब्वियसली, एंड आई यूज़ टू पे कुछ ऐसे 100 पता नहीं कुछ तो सर्टेन 135 रुपीज़ समथिंग टू फॉर 100 GB वाला प्लान, ठीक है। तो अब आई एम पेइंग 135 रुपीज़। अब टू एलिमिनेट दैट, अब लेट्स से मतलब ये तो बहुत छोटी एग्जांपल है, 135 रुपये को क्यों ही एलिमिनेट करना है, बट लेट्स से तुम्हारे पास बहुत सारी स्टोरेज है या तुम बहुत फ़ोटोज़ खींचते हो फॉर सम रीज़न। तो द आइडिया वॉज कि वेन एवर यू आर, बिकॉज मैं कॉलेज में ही रहता हूँ, तो यू आर कनेक्टेड टू NITJ का वाईफाई ऑलवेज, दिस लैपटॉप इज़ ऑल्सो ऑलवेज कनेक्टेड टू NITJ का वाईफाई। तो अब यू कैन यूज़ दिस लैपटॉप एज अ सर्वर, जैसे हमने डिस्कस कर रखा है बहुत बार कि हाउ कैन यू मेक दिस लैपटॉप अ सर्वर। तो व्हाट आई डिड वाज टू यूज़ दिस लैपटॉप एज अ सर्वर, एंड दिस इज़ माई NITJ का वाईफाई, ठीक है, दिस इज़ माई फ़ोन। तो जब भी मैं ट्रिप से वापस आऊँ, ट्रिप इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मेरे फ़ोन में कोई भी फाइल है लेट से, या कोई भी फाइल ऐड होती है मेरे डिवाइस में, तो ऑटोमेटिकली इन यूजिंग माई फ्लटर ऐप, लेट से उसका नाम है ABC, ऐप का नाम ABC ऐप, तो एक बैकग्राउंड में थ्रेड चलता रहे, बैकग्राउंड में टास्क चलता रहे टू एनालाइज कि इफ़ एनी न्यू इमेज और एनी न्यू फाइल केम, इफ़ येस तो ऑटोमेटिकली गो एंड अपलोड दिस टू माई लैपटॉप इंस्टेड ऑफ माई गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव तो ऑटोमेटिकली करता है कि ऑटोमेटिकली अपलोड कर रहा है, या इफ़ यू हैव टर्न्ड ऑन दैट सेटिंग, बट आई वांटेड कि ऑटोमेटिकली इट सेंड्स डेटा टू माई लैपटॉप, एंड उसके बाद कल को मैं अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकालूँ एंड आई हैव द होल डेटा, इट इज़ प्लग एंड प्ले सारा कुछ। बिकॉज एक रैंडम लैपटॉप पड़ा था, ये वाला लैपटॉप ऑब्वियसली नहीं, मेरे पास कुछ तो से 4 GB रैम वाला कोई तो पुराना लैपटॉप पड़ा है, अभी भी पड़ा है, मेरे उस हॉस्टल में पड़ा है। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू पावर एंड ऑलवेज कनेक्टेड टू इंटरनेट, मतलब ऑलवेज तो क्या ही, मतलब जब इंटरनेट वाई NITJ का ऑन है, तो बेस्ड ऑन दैट देर इज़ अ सर्टेन थ्रेड विच runs in background and uploads images directly to my laptop instead of Google Drive, ठीक है। और ये तब होता है जब मैं अपने रूम में आता हूँ ऑटोमेटिकली, तो इट स्टार्ट्स टू अपलोड। अभी तो मेरे पास आईफोन है, तो मैंने मतलब अब आई कांट डू दिस, बट एंड्रॉयड होता था उससे पहले, तो आई यूज टू डू दिस, ठीक है। अब दिस इज़ द सो इसके लिए हमें क्या करना था कि वी कांट यूज़ थिंग्स लाइक जस्ट फ्लटर टू डू समथिंग लाइक दिस, कि हम बैकग्राउंड में टास्क ला रहे हैं, उसके लिए हमें कोटलिन आनी चाहिए। अब तो कोटलिन इन द सेंस कि यू नीड टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एंड्रॉयड OS टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। अब तुम यहाँ से, तो ये तो सिर्फ एक पेंटर है ये वाला फ्लटर ऐप, तो ये तो तुम्हें UI दिखा सकता है, दैट्स इट। अब इसके पास इतनी पावर्स नहीं है, तो इट इवेंचुअली गोज़ एंड सेंड्स अ मैसेज टू एंड्रॉयड कि भाई ये काम करना है, कि फ़ोटो भेजनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड मतलब करना इज़ नॉट अ हैवी काम, वो फ्लटर भी कर सकता है, बट लेट से एक बैकग्राउंड थ्रेड चलाना है, बैकग्राउंड टास्क करना है, काम क्या है कि बैकग्राउंड टास्क रन करना है। तो इट लेट से अगर मैं इसको हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि अगर मैं तुम्हें लिखूँ BG टास्क रन रन, एंड्रॉयड को कहूँ तो तुम BG टास्क बैकग्राउंड टास्क रन कर देना, लेट्स से वी मेड दिस प्रोटोकॉल। तो ऐसा कुछ ही सिमिलर सा होता है। लेट्स लुक इनटू इसका हल्का हल्का कोड कि हाउ दिस वर्क्स। ये भी बहुत बड़ी रेपो है नहीं, बट लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू फाइंड फीचर्स, वर्क मैनेजर, कंट्रोलर्स, व्यू, आई नीड टू फिगर इट आउट थोड़ा सा, इसमें कहाँ है वो सर्ट स्पेसिफिक कोड, बट लेट्स सी। वर्कर सर्विस, तो तो नहीं होगा, और सर्विसेज या यहाँ पे होगा आपका वर्कर मैनेजर सर्विस। इसके अंदर इफ़ आई एम एबल टू शो यू, देखो ये क्या लिखा है, चैनल इन्वोक मेथड स्टार्ट पीरियोडिक वर्क। तो एज आई टोल्ड यू कि अगर मैंने अपने एंड्रॉयड के साथ ये इस्टेब्लिश कर रखा है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इन्वोक बैकग्राउंड टास्क, तो रन सम सर्टेन कोड, तो ये वाला कोड रन कर देना, ये वाला कोड
रन कर देना, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द प्रोटोकॉल जिससे तुम कोई भी चीज़ को एंड्रॉयड को डेलीगेट कर सकते हो एंड इवेंचुअली वो करेगा तुम्हारे लिए। तो दिस इज़ दिस क्लास जो ये करती है, एंड इसके अंदर कुछ कोटलिन कोड भी होगा जो कि एंड्रॉयड फोल्डर में ही होगा मेरे हिसाब से, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वेयर, बट लेट्स ऑल्सो सी दिस मेन कोटलिन। ये रहा देखो, प्लगइन्स, बैकग्राउंड मैनेजर। तो दिस इज़ सम कोटलिन कोड। अब देखो ये भी रिसीव कर रहा है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कोड आता है कि स्टार्ट पीरियोडिक वर्क, वहाँ से मैं भेज रहा हूँ स्टार्ट पीरियोडिक वर्क करने पे तुम्हें ये करना है, और ये सुन रहा है, दिस इज़ जस्ट लिसनिंग कि अगर मेरे पास स्टार्ट पीरियोडिक वर्क आता है तो मुझे सर्टेन टास्क करना है, या फिर स्टॉप वर्क आता है तो ये सर्टेन टास्क करना है। ये समझ में आया क्या हो रहा है? सो द पॉइंट वॉज कि हमें जो ये शेयर प्लस वाला पैकेज है, दीज गाइज आर इंटरनली डूइंग दिस ओनली, कि ये कुछ नहीं कर रहे, फ्लटर भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पास भी ये पावर नहीं है ये करने की, टू इन्वोक दिस डायलॉग जो एंड्रॉयड के पास है, टू शेयर दिस कंटेंट। दिस वोंट वर्क ऑन iOS बिकॉज दे हैव रिटन code for you haven't written code for iOS yet, or iOS security reasons. One, I haven't written code for iOS. दूसरी बात, it you have to write Swift for that, but I'm pretty sure you can have a workaround, but it is way difficult to do this. ऐसा नहीं है कि तुम कर ही नहीं सकते, बट दिस इज़ हार्ड। अब तुमने अगर कभी देखा हो iOS में, अगर तुम गूगल ड्राइव पे जाते हो एंड वहाँ पे तुम इमेजेस अपलोड करने लगाते हो, तो उसके बाद अगर तुम गो टू सर्च सम अदर ऐप तो वो इमेजेस अपलोड होनी बंद हो जाती हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डू बैकग्राउंड टास्क इन iOS, तो आई गेस कर ही नहीं सकते, बट मैंने भी कन्फिगर नहीं करा मेरे ऐप में तो एटलीस्ट। तो या हाँ, तो एवरी वन गॉट द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि एक्सेप्ट प्रियांश, बाकी सुधांशु, अमृत, हरनीत, ठीक, हरलीन, कूल कूल कूल। तो वी अंडरस्टूड कि हाउ टू शेयर, इतना सही था, बस इसमें एक ही लाइन थी। लेट्स कंटिन्यू। प्लेटफॉर्म चैनल्स वी डिस्कस्ड कि देयर इज़ अ मैसेज पासिंग ब्रिज बिटवीन डाटा एंड नेटिव कोड। नेक्स्ट इज़ URL लॉन्चर। तो एनीवन हु कैन गेस कि क्या करेगा URL लॉन्चर? व्हाट विल URL लॉन्चर डू? ओपन्स लिंक्स, या ठीक है, यू आर राइट, करेक्ट इंट्यूशन, मतलब इंट्यूशन तो क्या ही है वैसे, बट लेट्स सी व्हाट इट डज। फ्लटर पैकेज फॉर लॉन्चिंग URL। तो यू कैन सी कि इट इज़ ऑल्सो एज ट्रिवियल एज अदर पैकेज, कि जैसे हमने ये कहाँ बनाया था, कहीं याद है? ये एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट हमने कहीं पहले भी बनाया है, किसी को याद हो तो? API में बताओ कोई और। जब हमने गेट रिक्वेस्ट करी थी तो वी मेड दिस ऑब्जेक्ट टू पास इट टू द http.get, है ना? तो सिमिलरली वी मेड दिस URL टू पास दिस टू दिस फंक्शन विच वी विल डिस्कस। तो ये भी क्या करता है, इसके अंदर, ये तो हमने बनाया है फंक्शन लॉन्च URL करके एक नाम से फंक्शन, इसके अंदर का कोड देखो। तो इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम लॉन्च URL ही है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस पैकेज जिसका नाम URL लॉन्चर है। एंड इसको अगर तुम एक URL देते हो तो इट लॉन्चेस दैट URL इनटू जो भी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। अब कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, कैसे खोला, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये भी इवेंचुअली इट इज़ जस्ट अ ब्रिज फ्रॉम योर एंड मोबाइल ऐप टू द नेटिव प्लेटफॉर्म विच ऑर्केस्ट्रेट्स दिस, कि कौन सा ब्राउज़र खोलना है या कैसे खोलना है, राइट। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं। लेट्स डू दिस, देन लेट्स कॉपी दिस फंक्शन। Let's also make this URI. Let's import this. Cool. तो बस अब यही करता है कि this function it launches the URL, and अगर ये नहीं हो पाता है, मतलब if it is not true, then it throws an exception. That's it. Now let's terminate the app and restart the application and let's see this in action. बाकी अगर, अच्छा मैंने अभी एक बटन तो बनाया ही नहीं which invokes this, तो open flutter.dev, ठीक है, एंड इसको हम चेंज करते हैं टू लॉन्च URL फ्रॉम माई ऐप, ठीक है।
अपडेट नहीं हुआ क्या ये? So if I click on this, this will automatically opened Chrome and the website which we defined. ठीक है, this also works in the same way. It internally passes instructions to native code, and this is configured for you by this package named URI launcher. तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. You can see कि iOS के लिए there is different configuration and Android के लिए different configuration. Android के लिए it is not necessary because it is lenient. बाकी I assume iOS के लिए करना होगा, बाकी not sure. ठीक है. तो there are multiple things also. जैसे if you start with HTTPS and then maybe give it a website, it opens the link in default browser. If you write mail to and उसके बाद email address, जैसे let's make this button की make contact me. I guess someone Sujal I guess wanted to make something similar, जो which app happens in certain websites कि this directly goes to your mail. तो जैसे यहाँ पे भी, तो इसमें भी सेम ही वो है, हाइपर लिंक होगा कि mail2@silenninja.tech. इफ़ यू गो हेयर एंड मे बी यहाँ पे ना दिखे बिकॉज इट इज़ कंपाइल्ड इन अ सर्टेन वे, बट द पॉइंट इज़ कि इसमें भी द सेम थिंग हैपन्स कि देखो इसमें ऑटोमेटिकली खुल गया. तो यहाँ पे भी इफ़ यू चेंज दिस टू योर वेबसाइट टू mail2 कॉलन फिर मे बी rishi8220@gmail.com, इट शुड होपफुली ओपन तुम्हारा Gmail नाउ फ्रॉम आवर ऐप. कॉन्टैक्ट मी. तो देखो ऑटोमेटिकली Gmail खुल गया, इस पर कन्फिगर्ड नहीं है एमुलेटर पे, दैट्स वाई यू आर नॉट सीइंग इट, बट या कूल. सिमिलरली वी हैव टेल एंड इट विल ओपन जो तुम्हारा वो डायलर होता है, SMS एंड फाइल एक्सेट्रा. तो ये भी करके देख लेते हैं वंस, बाकी फिर चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट उस पर. तो लेट्स ऐड 99159720 एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस. नाउ इट ओपन्स द डायलर. ठीक है, कूल. यहाँ तक किसी को इशू? आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई इशू आएगा. तो एज वी डिस्कस्ड कि हमने ये वाली चीज़ तो अचीव कर ली. आई हैव बीन यूजिंग योर ऐप, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एट youtube.com या जो भी तुम्हारे ऐप का वो है, वेबसाइट का नाम है. ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा अचीव करना है कि जैसे तुम शेयर करते हो रील वगैरह, तो उसमें व्हेन यू क्लिक द लिंक एंड डायरेक्टली ओपन्स द ऐप एंड उस पर वो वाली पेज जिस पे वो सर्टेन रील है ना, तो मतलब तुम्हें डायरेक्टली रील दिखती है खुली हुई. तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ ऐप खोला उसके बाद तुम वो वाली रील सर्च करोगे, ये तो नहीं करोगे. तो वी विल अचीव समथिंग सिमिलर विच इज़ कॉल्ड डीप लिंक्स. तो लेट्स सी हमारी स्लाइड्स कहाँ हैं. Deep links is a URL that opens a specific screen inside an app instead of just opening the app. ठीक है, तो लेट्स सी, तो जैसे instagram.com एंड डीप लिंक में Instagram समथिंग लाइक दिस. ये बताता हूँ मैं क्या होता है. Instagram :: यूज़र नेम इक्वल टू माई यूज़र नेम. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीप लिंक्स. जो तुमने देखे होंगे वो नीचे वाले होंगे, यूनिवर्सल एंड एंड्रॉयड ऐप लिंक्स. तो उसमें तुम्हें कोई ऐसे ऐप वेबसाइट का लिंक होता है जिसको तुम क्लिक करते हो, एंड अगर तो तुम्हारे फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल्ड है देन इट ओपन्स द ऐप डायरेक्टली, नहीं तो वो डायरेक्टली टेक्स यू टू द वेबसाइट. ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ है, मतलब यूनिवर्सल लिंक्स आर द सेम थिंग्स, बट iOS के लिए इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लिंक्स एंड एंड्रॉयड के लिए इट्स कॉल्ड एंड्रॉयड ऐप लिंक्स. फ़र्क कुछ नहीं है. कस्टम स्कीम्स इज समथिंग जिसमें विच वी विल कन्फिगर टुडे. एंड अगर ये भी तुम ब्राउज़र पे लिखते हो या अपने QR कोड में इसको एम्बेड कर देते हो, तो इट ऑल्सो ओपन्स द ऐप ओनली. वेबसाइट तो नहीं खुलेगी इससे, ऐप ही खुलेगा. बट कंपनीज यूज़ दिस. अब इसके लिए तुम्हारे पास डोमेन होना चाहिए, उसके बाद काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो विच इज़ आउट ऑफ द स्कोप फॉर राइट नाउ. बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सेम इन दीज ऑल्सो. एक बार सेटअप हो जाए उसके बाद कोड लिखना वेरी सिमिलर, बट वी विल जो हम अभी कर सकते हैं विच इज़ कस्टम स्कीम्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम. ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो कि माई ऐप प्रोफाइल /42. ठीक है, तो अब माई ऐप, तो मान लो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ
कोई ऐप का नाम बताओ, डोमिनोज लेट्स से, या इंस्टाग्राम ही कर लो, इंस्टाग्राम कॉलन / उसके बाद प्रोफाइल / अगर मेरे लेट्स से यूज़र नेम है ऋषि8220, तो यहाँ मैं लिख दूँ ऋषि8220, तो इट विल डायरेक्टली ओपन माई प्रोफाइल व्हेन आई शेयर दिस लिंक टू यू। ठीक है, अब फॉर दिस टू कन्फिगर ईजीली, अब ये भी इट इज़ वेरी सिमिलर थिंग जो उससे ही होती है, ये भी नेटिव ब्रिज से कम्युनिकेट करते हुए, बट सम पीपल हैव मेड एंड मेंटेन दिस पैकेज नेम्ड ऐप लिंक्स टू मेक इट ईजी फॉर अस। तो लेट्स सी दिस पैकेज। तो दिस इज़ द पैकेज ऐप लिंक्स, एंड्रॉयड ऐप लिंक्स, डीप लिंक्स, iOS यूनिवर्सल लिंक्स एंड कस्टम यूआरएल स्कीम्स। यही 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी, वही यहाँ लिखी हैं हैंडलर्स। ठीक है, लेट्स सी देम वन बाय वन। तो हमें इसको मतलब यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं हमारे कोड से। तो हमने मैनिफेस्ट तो डिस्कस करी ही थी, तो पहले तो यू कैन सी कि देयर इज़ सर्टेन कोड नेम्ड इंटेंट फिल्टर, एंड उसके बाद देयर इज़ सर्टेन कोड जो हमें लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, जैसे अगर मैं बताता हूँ, तो अगर यहाँ से तुमने देखा यहाँ माई ऐप है, या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम है स्कीम के आगे, तो यहाँ ये तो HTTPS प्रोटोकॉल है जो वेब पे चलता है। अब हम HTTPS तो एक प्रोटोकॉल है जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, लोग यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर भी रखा है। इंस्टाग्राम करके या फिर मेरे ऐप का नाम लेट से NITJ पोर्टल करके कुछ है, लेट से NITJ पोर्टल, तो आई कैन मेक अ कस्टम स्कीम और प्रोटोकॉल जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड आई कैन डिस्क्राइब दिस इन माई मैनिफेस्ट कि दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच आई एम क्लेमिंग टू यूज़। उसके बाद अगर ये लिंक, जो ये वाला लिंक है, इफ़ दिस कम्स एंड यूज़र क्लिक्स ऑन दिस और समहाउ ओपन्स दिस, वो देखते हैं कि कैसे खुलेगा ये, बट इफ़ समवन क्लिक्स ऑन दिस लेट्स अज्यूम, तो उसके बाद द एंड्रॉयड वाला OS या iOS वाला OS इट विल सी कि मैनिफेस्ट में किसकी मैनिफेस्ट में लिखा हुआ है कि ये वाली स्कीम, मतलब जो ये है माई ऐप है या फिर इंस्टाग्राम लेट्स से, तो एक कौन सी वाली ऐप की स्कीम में लिखा है, मैनिफेस्ट में लिखा है, तो मैं उसको ये काम देता हूँ कि भाई ये लो तुम्हारा लिंक, इसको आगे खोल लो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर दैट टू टेल द मैनिफेस्ट। अब हमने डिस्कस करा ही है मैनिफेस्ट क्या है। मैनिफेस्ट तो वही मतलब कि जिसमें वी डिफ़ाइन कि हम कौन सी परमिशंस यूज़ करेंगे, हमारे ऐप का नाम वगैरह क्या होगा या पैकेज नेम क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमिलरली एंड हमें स्कीम क्लेम करने के लिए कि हम वी आर यूजिंग दिस स्कीम फॉर माई एप्लीकेशन, देन यू कैन डिफाइन इट हेयर। तो हम यू कैन क्या हमें करना ही है, तो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड यूज़ दिस हेयर। अब सेम चीज़ iOS में करनी हो तो यू गाइस नो कि यू नीड टू एडिट info.plist। तो अगर किसी को साथ साथ में करना है तो आई हैव पेस्टेड द कोड हेयर। बाकी लेट्स गो टू मैनिफेस्ट, सॉरी हाँ, एंड लेट्स ऐड दिस आफ्टर दिस इंटेंट फिल्टर एंड ये एक्टिविटी टैग के अंदर अंदर। ठीक है, लेट्स जस्ट पेस्ट दिस हेयर, कूल। एंड अगर किसी को iOS के लिए करना है तो डू द सेम फॉर, मैंने नहीं डाला गया यहाँ पे, आई एम श्योर मैंने डाला था iOS कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा, दिस शुड बी अबव यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, इफ़ समवन वांट्स टू यूज़ दिस राइट नाउ। कूल, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो ये हो गया ऐप लिंक्स, हमने इंस्टॉल कर लिया होपफुली ऐप लिंक्स। एंड अब देखो इतना काम क्या हुआ है अभी तक क्या हुआ है कि अगर कोई मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है माई ऐप कॉलन और उसके बाद लेट्स से प्रोफाइल /42, इतना लिखा हुआ है अगर, तो इतना काम तो तुमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में डाल के कर दिया कि अगर कहीं पे बाय चांस ये माई ऐप से शुरू होता हो, स्कीम माई ऐप से शुरू होती हो, तो जो मेरा ऐप है जिसको मैं बना रहा हूँ या मेरा ऐप तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, गिव दिस लिंक टू माई ऐप, तो जो OS है वो तुम्हें एटलीस्ट इतना काम तुम्हें कर देगा कि ये पूरा लिंक तुम्हें दे देगा कि ये लो भाई, अब इसका जो आगे करना है कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद की चीज़ तुम्हें हैंडल करनी है कि बाकी जो ये प्रोफाइल लिखा है 42 लिखा है, इसके वजह से तो मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, कूल। तो अभी हम जाते हैं स्लाइड्स पे एंड लेट्स सी कि आगे कोड क्या है। तो ये रहा, सिंपल कोड है। क्या कोड है, लेट्स सी कि पहले तो हमें एक ये बनाना पड़ेगा नेविगेटर स्टेट।
अभी क्यों बनाना पड़ेगा, लेट्स डिस्कस। ग्लोबल की नेविगेटर स्टेट, नेविगेटर की, इसका सिमिलर हमने क्या बनाया हुआ है, फॉर्म की बनाई हुई है पहले, ठीक है, ऐसे करके। सिमिलरली हमने नेविगेटर स्टेट बनाई है अभी। अब एज वी डिस्कस्ड कि जब मटेरियल ऐप बनेगा उसके बाद उसके नीचे नेविगेटर हमारा प्लगइन होगा, तभी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर पाएंगे, ठीक है, इतना वी अंडरस्टैंड। बट अभी क्या है कि जब ऐप खुलेगा उसके पहले ही हमें लिंक चाहिए होगा, तभी तो हम नेविगेट कर पाएंगे। तो तुम्हारे ऐप रेडी होने से पहले ही, मटेरियल ऐप बनने से पहले ही तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब लिंक मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें नेविगेटर इमीडिएटली चाहिए होगा। बट जब विजेट्स बनेंगी या ट्री बनेगा उसके बाद तुम्हें नेविगेटर का एक्सेस मिलेगा। तो दैट्स वाई यू कांट डू यूज़ द डायरेक्टली वो वाला कोड जो तुम यूज़ करते हो, नेविगेटर डॉट पुश करके, बिकॉज इस टाइम पे नेविगेटर अवेलेबल ही नहीं है। तो नेविगेटर अवेलेबल नहीं है, तुमने उससे पहले ही एक नेविगेटर बना के रखा है, दैट्स वाई जो यहाँ पे है। तो वी विल यूज़ दिस, तो हमें ये यहाँ पे प्लग इन करना पड़ेगा मटीरियल ऐप में कि वी विल बी यूजिंग दिस नेविगेटर। तो नेविगेटर की दैट्स इट, ठीक है। नेविगेटर की तुमने बना ली, मटेरियल ऐप में डाल दी। नाउ वी विल ट्राई टू लिसन टू द लिंक्स। तो अब हम कॉन्टीन्यूसली सुनते रहेंगे कि क्या कोई लिंक आया है, मतलब क्या कोई किसी ने क्लिक करा है। उसके बाद ओएस ने ढूंढा कि कौन से वाले ऐप को देना है, एंड लेट्स से दिस इज़ द यूज़र, ठीक है, एंड ये तुम्हारा फ़ोन है, उसके बाद ये तुम्हारा ओएस है, ठीक है। इसके बाद देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, 2 3 4, ठीक है। अब लेट्स से इसने स्कीम क्लेम करी है माई ऐप, इसने स्कीम करी है NITJ, इसने स्कीम क्लेम करी है इंस्टाग्राम, एंड लेट्स से इसने करी है IIT RPR, ठीक है। तो these schemes are claimed by certain applications. अब यूज़र when clicks on the link जिसमें है जिसमें स्कीम है माई ऐप विच इज़ करेंटली मेरे ऐप की स्कीम 42, ठीक है। अब दिस गोज़ टू द OS नाउ, बिकॉज फ्लटर जो भी मतलब ये एप्लीकेशन है या जो भी कोई और एप्लीकेशन है, अभी तो हमारे एप्लीकेशन में आया ही नहीं है, जहाँ से भी क्लिक करा है डेलीगेट्स टू द OS, देन OS डिसाइड्स कि अच्छा इसको दूँ, तो इट सीज कि ओके दिस इज़ माई ऐप, देन दिस गिव्स टू अवर ऐप। अब हमारे ऐप पे तो आ गया, नाउ वी हैव टू लिसन कॉन्टीन्यूसली कि क्या कुछ आया तो नहीं, क्या कोई लिंक आया है। तो अगर आया है देन वी विल हैंडल इट इन अ सर्टेन वे कि अच्छा अगर माई ऐप कॉलन प्रोफाइल आया है तो मुझे कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, माई ऐप कॉलन लेट्स से प्रोफाइल के अलावा क्या होता है, सेटिंग्स आया है तो मुझे कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, वट एवर, ठीक है, उसके बेसिस पे वी विल रिडायरेक्ट। अब लेट्स सी कि हाउ टू डू दैट नाउ। तो देयर इज़ अ सर्टेन कोड विच यू नीड टू राइट, कि अभी तो हमने एक ऐप लिंक्स वाला पैकेज यूज़ करा था, तो एट द इनिट स्टेट वी विल पहले तो मेक दिस ऑब्जेक्ट फॉर ऐप लिंक्स जैसे हम जर्नली करते हैं। तो लेट्स मेक लेट फाइनल ऐप लिंक्स इक्वल टू ऐप लिंक्स, ठीक है, कूल। अब एट इनिट स्टेट वी विल हैंडल दिस। तो लेट्स सी, यू कैन सी कि अब यहाँ पे अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे तो इनिशियलाइज़ करा ही नहीं है बिकॉज इट इज़ लेट। तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हैं पहले माइनस ऐप लिंक्स देन ऐप लिंक्स, एंड उसके बाद जो भी हमें हैंडल करने के लिए फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के फंक्शंस हैं, हैंडल इनिशियल लिंक, हैंडल इनकमिंग लिंक्स। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ऐप अभी डाइड है, मतलब खुला ही नहीं हुआ, मेमोरी में है ही नहीं, तो अभी खुलेगा, पहली बार खुलेगा। तो जब ये लिंक आएगा माई ऐप के पास तो तुम्हारा ऐप पहली बार खुल रहा है, तो एक तो वो केस हो गया। या फिर दूसरा केस है कि तुम्हारा ऐप खुला है या कोई यूज़ कर रहा है एंड समवन इन्वोक दिस, एंड अब खुले ऐप में तुम्हें अब देखना है कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो यू हैव टू हैंडल दीज बोथ ऑफ देम डिफरेंटली, ठीक है। लेट्स राइट दिस फंक्शंस, हैंडल इन इनिशियल लिंक्स एंड एक सेकेंड, एंड हैंडल जो भी हमारा इनकमिंग लिंक्स, ठीक है। दो फंक्शंस हैं। अब लेट्स मेक दिस फंक्शंस जो हमने अभी बनाए नहीं हैं, जस्ट लिखे हैं। तो पहले हम इनिशियल वाला कर लेते हैं, हैंडल इनिशियल URI,
या इनिशियल लिंक जो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। एंड अब लेट्स सी कि इसका कोड क्या है। तो यही है, बहुत सिंपल है कि जो तुमने ऐप लिंक्स वाला ऑब्जेक्ट बना रखा है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, इसमें कॉल करो डॉट गेट इनिशियल लिंक, तो तुम्हें इनिशियल लिंक दे देगा। और ये तुम्हें मतलब इनिशियल लिंक कैसे शेयर होते हैं डार्ट में, वो हमने डिस्कस कर ही रखा है यूआरआई के थ्रू, तो तुम्हें लिंक नहीं है, एक यूआरआई देगा। तो लेट्स डू दिस। तो वही करा हुआ है कि इसमें लेट्स मेक दिस नलेबल ऑल्सो एंड गेट इनिशियल ऐप लिंक, ठीक है, इज डिफाइंड फॉर गेट इनिशियल लिंक, ठीक है। अब ये तुमने कर लिया, लिंक ले लिया। अब या तो तुम इसको जस्ट प्रिंट करके देख लो कि भाई क्या मेरे पास आया है, लिंक क्या आया, ठीक है, गुड। या फिर इसको हैंडल कर लो आगे। अब इसको हैंडल करना देखते हैं, बट लेट्स मेक दिस सेकंड फंक्शन ऑल्सो जो इनकमिंग लिंक्स के लिए है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेम ऑब्जेक्ट जो अब यूआरआई लिंक स्ट्रीम है, स्ट्रीम हमने डिस्कस कर ही रखी है, जो मतलब दिस जस्ट अ रिवर जो इवेंचुअली चलती जा रही है, एंड यू आर इफ़ यू ड्रॉप समथिंग इट इवेंचुअली रीचेस टू यू। तो द ओएस ड्रॉप दिस इनटू अ रिवर एंड इवेंचुअली रीच टू योर ऐप, यू लिसनिंग टू द स्ट्रीम, एंड उसके अंदर तुम्हें यूआरआईज मिलती जा रही हैं, और जो भी यूआरआई मिल रही है तुम उसे प्रिंट करते जा रहे हो, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्या हो रहा है कि इनिट स्टेट पे हम दो फंक्शंस बना रहे हैं, एक तो इनिशियल यूआरआई हैंडल करने के लिए, एक इनकमिंग यूआरआई हैंडल करने के लिए। इनिशियल यूआरआई आती है, उसके लिए हम डॉट गेट इनिशियल लिंक करते हैं, तो फिर हमें वो यूआरआई मिल जाती है। हम फिलहाल के लिए प्रिंट करा रहे हैं, उसे हैंडल कैसे करना है विल इवेंचुअली सी। और सिमिलरली इनकमिंग लिंक्स आ रहे हैं जो उनके लिए यू आर लिसनिंग टू द स्ट्रीम एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर जस्ट प्रिंटिंग कि कौन कौन सी आ रही हैं, मतलब कौन कौन से ऐप्स, मल्टीपल थिंग्स, या जो भी तुमने कहीं पे भी लिंक क्लिक करा होगा, इट इज़ रीडायरेक्टिंग टू योर एप्लीकेशन। इतना क्लियर है किसी को और सबको? मतलब एक सेकेंड, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू फिर आगे, ठीक है। अभी हम इतना हमने कर लिया कि हम प्रिंट करवा दे रहे हैं उसको जस्ट। तो लेट्स सी कि होता क्या है। तो इधर यू कैन डू कि जो ये वाला लिंक है जो हमने बनाना है, या कोई भी लिंक है, लेट्स से प्रोफाइल नहीं जो भी है, बट इट स्टार्ट्स विद जस्ट माई ऐप। तो इसको तो मैं चेक करने के लिए व्हाट यू कैन डू कि तुम इस पर क्लिक तो कर नहीं सकते टू ओपन इट, क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक नहीं है, HTTPS नहीं है, तो नो वन रिकॉग्नाइजेस दिस। दिस इज़ योर कस्टम स्कीम, नॉट HTTPS, ठीक है। तो इधर यू कैन मेक अ QR कोड एंड देन स्कैन इट फ्रॉम द ऐप योर फोन, एंड उसके बाद जो OS है ऑटोमेटिकली विल रीडायरेक्ट टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। दिस इज़ द गुड वे टू डू दिस। बट अभी हम QR कोड बना के दूसरे फ़ोन से टेस्ट स्कैन वगैरह नहीं करेंगे। दिस इज़ जस्ट अ कमांड लाइन, यूजिंग द कमांड लाइन यू कैन परफॉर्म्स द सिमिलर एक्शन टू टेस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अगर किसी को चलानी है तो हियर इज़ द कमांड, एंड लेट्स सी कि दूसरे टर्मिनल पे हम चला के देखते हैं। तो इट इज़ जस्ट इन्वोकिंग रेप्लिकेटिंग द सर्टेन एक्शन, अगर हम QR कोड वगैरह से करते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई रन दिस, तो लेट्स सी कि वो प्रिंट हुआ क्या जो हमने अभी मतलब करा है। हमने अभी रीस्टार्ट नहीं करा एप्लीकेशन, माय बैड। लेट्स ऑल्सो let's run the app again and let's see, then we'll continue. Now that the app is running and it has claimed the scheme जो हमने डिस्कस करी थी माई ऐप वाली, तो now let's replicate run this command to replicate the behavior and see कि क्या मेरे पास वो प्रिंट होता है या नहीं। तो इनिशियल यूआरआई नल दिखा रहा है, ओके, नॉट श्योर वाई। वाई इट इज़ नल दो? हमने माई ऐप ही करा है स्कीम क्लेम, राइट? खैर कोई नहीं, लेट्स ट्राई टू हैंडल दिस फर्स्ट कि प्रिंट कराने के अलावा हाउ वी कैन डू सर्टेन थिंग्स विद दिस। तो एज यू कैन सी कि दोनों जगह पे हमने हैंडल डीप लिंक नाम का फंक्शन है। तो या तो राइट कोड डायरेक्टली यहीं पे, तो जैसे ही तुम्हारे पास लिंक आया उसके बाद
एग्जीक्यूट सर्टेन कोड, या फिर हमने एक रीजनेबल फंक्शन बनाया बिकॉज दोनों के लिए सेम ही हैंडलिंग करनी है हमें। तो लेट्स सी वो वाला फंक्शन। तो हेयर इज़ द हैंडल डीप लेग फंक्शन। तो एक तो हमने प्रिंट कराया, उसके बाद अगर इफ़ द स्कीम डजंट स्टार्ट्स विद माई ऐप देन वी आर रिटर्निंग दिस। एंड उसके बाद अगर जो URI डॉट होस्ट, होस्ट क्या है, जो हमने यहाँ पे लिंक दिया है माई ऐप कॉलन प्रोफाइल, तो प्रोफाइल इज़ द होस्ट। आप माई ऐप तो तुमने डिटरमाइन कर ही लिया बिकॉज तुम्हारे पास आया वो स्कीम, पार्ट ऑफ द स्कीम। देन होस्ट इज़ दिस प्रोफाइल। एंड जो ये प्रोफाइल है, अगर इफ़ द केस, अब स्विच केस है सिंपल, अगर होस्ट प्रोफाइल है तो वी विल हैंडल दिस इन अ सर्टन वे, अगर कुछ और होता तो वी विल हैंडल इट इन अ सर्टन वे, बट हमारे पास अभी कुछ और है नहीं, तो प्रोफाइल ही है। तो प्रोफाइल के अंदर यू ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई दिस 42 ऑल्सो, कि मुझे 42nd ID जिस प्रोफाइल की ID लेट से 42 है, या लेट से ऋषि है जिस प्रोफाइल की ID, मुझे वो खोलना है, वो वाला पेज खोलना है। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग द 42 वाली ID फ्रॉम द URI जो हमारे पास आ रही है। तो हमने तीन चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी, एक तो स्कीम विच इज़ माई ऐप, देन हमने होस्ट एक्सट्रैक्ट करा विच इज़ प्रोफाइल, देन हम URI डॉट पाथ सेगमेंट्स डॉट फर्स्ट, तो पाथ को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो दिस इज़ द पाथ। इसमें अगर 42/52/62 होता लेट से लिंक कैसा होता, तो यू कुड हैव डन सेकंड और थर्ड टू गेट अ फर्दर पाथ सेगमेंट्स। तो पाथ सेगमेंट्स माइट बी अ लिस्ट, है ना। URI डॉट पाथ सेगमेंट्स में एक लिस्ट होती है, जिसमें इस लिस्ट में सिर्फ एक ही पैरामीटर है विच इज़ 42, एंड इसका तुमने फर्स्ट इंस्टांस उठाया विच इज़ द यूज़र ID, एंड बेस्ड ऑन दिस यूज़र ID यू कैन पुश टू सर्टेन स्क्रीन्स। तो अगर मेरे पास कोई प्रोफाइल स्क्रीन है, उसके अंदर आई विल पुश द स्क्रीन विद दिस यूज़र ID। अब तुम्हें यूज़र ID तो मिल गई, अब बेस्ड ऑन दिस यूज़र ID ऑन द सेकेंड स्क्रीन यू कैन मे बी रन अ फंक्शन विच कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम द फायरबेस, एंड वहाँ से तुम फेच करके यूज़र की डिटेल्स दिखा सकते हो। तो अगर यहाँ पे होता समथिंग लाइक दिस प्रोफाइल स्लैश, मेरी लेट से ID है ऋषि A2220, ठीक है, मान लो इंस्टाग्राम, जो कि नहीं है, बट अगर ये होती तो हमने ये वाली चीज़ एक्सट्रैक्ट करी, प्रोफाइल एक्सट्रैक्ट करा, फिर ये वाली चीज़ एक्सट्रैक्ट करी। अब हमने भेजा इसको एक प्रोफाइल स्क्रीन पे टू शो द प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल स्क्रीन पे यूजिंग दिस ID और दिस आइडेंटिफायर वी कैन गो टू फायरबेस एंड फेच डेटा फ्रॉम दैट एंड शो दैट दिस इज़ द यूज़र जिसकी आप लिंक प्रोफाइल शेयर कर रहे हो, ठीक है। कूल। तो लेट्स राइट दिस सिंपल फंक्शन and to handle deep links. Not just this, but अरे कौन कॉल कर रहा है यार, एक सेकेंड। I'm just writing the same function and यहाँ पे we will accept URI, ठीक है। तो what is wrong here is not equal to my app, and then we will return simply, and else let's do a switch case. If it is profile then we will navigate via our navigator. तो ये भी तुमने देख लिया कि वी आर नेविगेटिंग via the navigator की इंस्टेड ऑफ जो हम डिफ़ॉल्ट नेविगेटर यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। एंड यूज़र ID वी विल पास दिस टू माय प्रोफाइल पेज, ठीक है। प्रोफाइल पेज मैंने बनाया नहीं है, तो लेट्स मेक प्रोफाइल पेज ऑल्सो, यही बना लेते हैं। लेट्स मेक श्योर कि इट एक्सेप्ट द यूज़र ID जो हम पास कर रहे हैं, एंड लेट्स ऐड अ स्काफोल्ड, एंड इसके अंदर वी विल शो द यूज़र ID, दैट्स इट, ठीक है। ऑल्सो ये फंक्शन हमने बना रखा है बट वी आर नॉट यूजिंग इट, तो लेट्स ऐड इट हेयर एंड लेट्स गिव इट अ URI, ठीक है। Similarly let's copy this and paste this here. Let's close and restart the app. Meanwhile let me message someone.
ठीक है। ओके, दिस एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग, लेट्स जस्ट चेंज दिस नेम जो हमने क्लेम करा है टू माई ऐप 1, लेट्स से। Cool. Now let's run this again. Also change यहाँ पे भी my app 1 and let's see now what happens. Wait a second. Was this matter solved? हाँ, तो लेट्स सी, ऐप चल रहा है। लेट्स ट्राई टू इन्वोक दिस यहाँ से and let's see ki if it is working. You can see we received the URI my app 1 profile and reshared 200 and it automatically opened the profile page with my ID. ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें ID मिल रही है तो तुम यहाँ पे एक फंक्शन लगा के इसके स्टार्टिंग में यू कैन फेच इट फ्रॉम फायरबेस ऑल्सो। कूल, समझ में आया क्या हो रहा है? कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है कहीं पे? सुधांशु, सुजल, ठीक है, टेस्टिंग हो गई, बस दैट्स द क्लास। इतना सही था इन डीप लिंक्स, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है इन डीप लिंक्स इट इज़ टू बाय अ डोमेन देन वेरीफाई इट विद अ SHA-256 की एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब तुम्हारे पास डोमेन होगा तो बताना, किसी दिन कर लेंगे। बट आई गेस इट इज़ इनफ कि डीप लिंकिंग हमने पढ़ ली है, शेयरिंग, देन प्लेटफॉर्म ब्रिजेस। और अगर किसी को डिस्कस करना है, बिकॉज मेरे पास 15-20 मिनट ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, मुझे जाना है एक और मीट में, बताओ, या फिर वी कॉल इट अ डे। असाइनमेंट क्या बनाओगे फिर आज? समवन सजेस्ट शुड आई स्टडी फ्लटर कोर एंड बैकएंड एंड फ्रॉम वेयर? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लटर कोर? बैकएंड कहाँ से पढ़ना है यार? बैकएंड कहाँ से पढ़ना है? अच्छा, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बैकएंड के बारे में। मतलब ऐसे पढ़ाऊँगा नहीं, जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली हैं ऑलरेडी, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स या बूट कैंप में नहीं होती। तो उसमें से सम थिंग्स वर कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, हाउ HTTP वर्क्स, हाउ इट इज स्टेटलेस, हाउ वेब सॉकेट वर्क्स, ठीक है, एंड हाउ सर्वर वर्क्स ऑल्सो, हाउ दे वर्टिकली स्केल एंड हॉरिजॉन्टली स्केल। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें इतना इस्टेब्लिश्ड है कि भाई एक सर्वर होगा, वो कुछ डेटा सर्व करेगा बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग सम डेटा, ठीक है। अब बस तुम्हें ये सीखना है कि वो कोड कैसे लिखना है जो इन्फिनाइटली चलता रहे, एंड वो अगर कोई रिक्वेस्ट आती है किसी भी क्लाइंट से तो इट ऑब्जर्व्स कि क्या रिक्वेस्ट है, इट अंडरस्टैंड्स कि क्या रिक्वेस्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट प्रोसेसेस एंड गिव्स द डेटा बैक, ठीक है। अब ये तुम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है। तुम ये चीज़ कर सकते हो मे बी इन सी में भी कर सकते हो, एक वेब सर्वर बना सकते हो। अब तुम ये चीज़ लेट्स से जावा में भी कर सकते हो, बिकॉज बड़े इंटरप्राइजेस यूज़ जावा फॉर सर्टेन सेम थिंग्स। दिस इज फ्रेमवर्क कॉल्ड स्प्रिंग बूट, ठीक है। एंड what I wanted to say, हाँ, अब जनरली पीपल प्रेफर टू स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट बिकॉज इट इज़ ईजी टू वर्क विद एंड इट इज़ ईजी टू मेक सर्वर्स एंड डिप्लॉय इट विद, ठीक है। तो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बिकॉज जितना हमने डार्ट में पढ़ा था, डार्ट में कितना पढ़ा कि हाउ टू मेक वेरिएबल्स, हाउ टू मेक फंक्शंस, हाउ टू मेक क्लासेस, दैट्स इट। बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट पता ही है, ठीक है। अब ये डिस्कस कर लो जाके, ChatGPT से पूछ लोगे ना तुम 10 मिनट सिर्फ बात कर लोगे कि मुझे बेसिक जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स वगैरह बता दो, यू विल गेट फेमिलियर बिकॉज वो इससे भी आसान है, ठीक है, डार्ट से भी। तो ये तुमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज़ लर्निंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब तुम्हें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में तुमने डार्ट में पढ़ा है, क्या होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तुम्हें पता है, अगर तुम्हें याद नहीं है रिवाइज़ कर लेना हल्का सा। उसके बाद तुम्हें सिंटेक्स देखना पड़ेगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर, सेम कोड, सेम लॉजिक, सेम सिंटेक्स, सेम इवेंट लूप, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट रिप्लेस द वर्ड फ्यूचर विद प्रॉमिस, तो वो जावास्क्रिप्ट में हो जाता है।
अब फ्यूचर के अंदर हमने पढ़ा था कि इट इज़ ऑल्सो प्रॉमिस कि मैं बाद में आई विल रिटर्न यू सम वैल्यू और एरर, तो उसका नाम उन्होंने प्रॉमिस रखा हुआ है, तो यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, तुम्हें अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आती है। नेक्स्ट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर प्रोटोकॉल HTTP एक्सेट्रा, स्टेटफुल एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बस तुम्हें एक फाइनल की पीस ऑफ की पढ़ना है विच इज़ अ फ्रेमवर्क, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं फ्लटर, अ फ्रेमवर्क टू मेक applications, make HTTP servers or write code for HTTP servers, for servers to understand HTTP protocol and communicate। ठीक है, अब उसके लिए दिस इज अ फ्रेमवर्क विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कॉल्ड एक्सप्रेस। ठीक है, अब तुम एक्सप्रेस पढ़ोगे अगर तुम्हें पढ़ना है बैकएंड थोड़ा बहुत, तो एक्सप्रेस इज़ वेरी इजी। अब फ्रेमवर्क हमने फ्लटर पढ़ा 14 दिन लगा के, इतना नहीं है उसमें, इट इज़ वेरी इजी टू वर्क विद। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सिंटेक्स दिखाऊँ मैं, तो एक्सप्रेस सिंटैक्स, एंगुलर नहीं, एक्सप्रेस JS, एक्सप्रेशन क्यों लिख दिया यार, एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये तुम कहीं से भी वीडियो देख लेना, बहुत मुश्किल है नहीं, 2-3 घंटे का काम मुश्किल से होगा। यू कैन सी कि कहाँ है ये जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड है, ये तुमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये देखो क्या लिखा है, रिक्वायर एक्सप्रेस। यहाँ पे क्या करते हो तुम, इम्पोर्ट पैकेज, यहाँ क्या है, रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद ये क्या बनाया हुआ है, एक इंस्टेंस ऑफ एन ऐप बनाया हुआ है, जैसे तुम करते हो फायरबेस डॉट इंस्टांस, वैसे यहाँ एक्सप्रेस ब्रैकेट लिखा हुआ है, सेम चीज़। ठीक है, इस लाइन को फिलहाल के लिए भूल जाओ। ये देखो क्या लिखा है, ऐप डॉट लिसन 3000 क्या है, पोर्ट है। पोर्ट हमने डिस्कस कर ही रखे हैं, 8 हमने एक बार सर्वर चलाया था तुम्हारा पाइथन का, जिससे तुम फाइल सेव कर पा रहे थे 8000 पोर्ट पे। सिमिलरली यहाँ पे वी आर रनिंग इट ऑन 3000 पोर्ट। अब ये 3000 पोर्ट पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तुम्हारे सर्वर की IP पे, देन दिस कोड विल बी रनिंग, जो तुम सुन रहा होगा। यू कैन सी कि यहाँ पे console.log इज़ द सेम थिंग एज प्रिंटिंग हेयर, एंड सर्वर इज़ रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 30,000। लोकल होस्ट इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर करंट लैपटॉप की IP। ठीक है, तो अब 3000 पोर्ट पे दिस कोड इज़ कॉन्टीन्यूसली लिसनिंग एंड रनिंग। ठीक है, अब तुमने इतना तो बना लिया कि एक कॉन्टीन्यूसली कोड तो लिसन हो रहा है, मतलब कोड तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, बट अगर कहाँ रिक्वेस्ट आए तो मैं क्या भेजूँ, तो जैसे अगर मतलब लोकल होस्ट स्लैश अगर AP मतलब हेलो पे रिक्वेस्ट आए तो मैं कुछ भेज सकता हूँ, अगर स्लैश ऋषि पे रिक्वेस्ट है तो कुछ भेज सकता हूँ, मी पे रिक्वेस्ट आए तो मैं कुछ डेटा रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तुम लिख सकते हो ऐप डॉट गेट। गेट का क्या मतलब है कि अगर गेट रिक्वेस्ट आए, पोस्ट रिक्वेस्ट भी आ सकती है, गेट रिक्वेस्ट भी आ सकती है, क्योंकि हमने HTTP में पढ़ ही लिया है। तो अगर गेट रिक्वेस्ट आती है कहाँ पे, स्लैश पे, स्लैश मतलब सिर्फ इसी पे ही, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं, बस जस्ट स्लैश पे रिक्वेस्ट आती है, तो क्या करना है, तो मुझे रिस्पॉन्स वापस भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू एक्सप्रेस JS ट्यूटोरियल। ठीक है, सिमिलरली यू कैन मेक डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट राउट्स, कि अगर स्लैश मी पे रिक्वेस्ट आती है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड सूजल, माई नेम इज सूजल। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक सर्वर्स जो हमने बनाया। अब इतना तुम कर लोगे थोड़ा बहुत इसके साथ प्ले अराउंड दिस, देन यू कैन कनेक्ट डिफरेंट डेटाबेसेस टू दिस। अब हमने तो फायर स्टोर इंटीग्रेट करा था, यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट फायर स्टोर, बट यू कैन ऑल्सो रन मल्टीपल डेटाबेसेस लाइक पोस्टग्रेस एंड MongoDB। अब MongoDB करो पहले, बिकॉज तुमने फायर स्टोर पढ़ रखा है, इट इज़ एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, फायर स्टोर एंड MongoDB they are exact carbon copies, and now you can learn MongoDB and integrate with your Express application। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तुम पढ़ सकते हो, बैकएंड में ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि फ्रंट एंड काफ़ी कई बार ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है बैकएंड से, बट हाँ, ये तुम्हें कुछ कुछ पता लग गया, आगे तुम पढ़ सकते हो। अब पढ़ना कहाँ से है यार, वो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन ही खोल दो वहीं से पढ़ लो, बट अब तुम जो जहाँ से सही लगे वहाँ से पढ़ लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट द पॉइंट इज़ टू मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम इट। सिर्फ पढ़ के मत बैठ जाना, और पढ़ो कम बनाओ ज़्यादा, तो तुम ज़्यादा सीख पाओगे। और किसी को कुछ डिस्कस करना है तो, या कोई और रैंडम कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, 10 मिनट और। अगर इसके पास कुछ नहीं है तो नाउ यू कैन लीव। बाकी अगर तुम्हें कुछ डिस्कस करना है या कोई रैंडम बात करनी है तो बताओ। बाय, ओके बाय सुजल, थैंक यू भाई।
ओके विलांश, बाय बाय संकेत, बाय सुधांशु। अंकित और हलीन कुछ डिस्कस करना तो बताओ। बाय हलीन। सर कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, वो कहाँ से करूँ बताओ, कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है? लाइक वेब सॉकेट्स, देखो वेब सॉकेट्स में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, ये तो जस्ट इट इज़ टू मेक अ मेंटल मॉडल कि तुम इवेंचुअली जब जाके वेब सॉकेट्स पढ़ोगे, बैकएंड सीखोगे, तब तुम्हें इजी हो जाए कि ओके चीज़ें चलती कैसे हैं। और जो ये फायरबेस में स्ट्रीम्स वगैरह थी जो हमने बनाई हैं टू लिसन टू डेटा रियल टाइम, वो इंटरनली काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें पढ़ना है वेब सॉकेट्स को डिटेल में, तो या तुम्हें कोई ब्लॉग या वेब वीडियो देख लो कोई एक 10-15 मिनट की, वैसे तो मैंने बताया ही था, या तो उसे रिवॉच कर लो अगर वहाँ से समझ नहीं आया फॉर सम रीज़न, तो कोई भी 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ होती है वेब सॉकेट्स। या तुम्हें अगर इतना आइडिया ऑलरेडी है कि ऐसी चीज़ होती है वेब सॉकेट्स जो हमने डिस्कस करी थी, बायलैटरल कम्युनिकेशन वगैरह क्या हो रहा है, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस बूट कैंप। अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना होगा जब भी कि वेब सॉकेट्स बनाने कैसे हैं, ये सब करना कैसे है, तब अभी मत करो, जब तुम बैकएंड सीख लोगे, थोड़ा एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, उसके बाद ही करना फिर ढंग से। और कुछ टॉपिक में दिक्कत है तो बताओ। ओके ओके अंकित, मिलते हैं फिर, ठीक है।